Hare Krishna. Okay. Youth boys, youth girls, welcome to this class. Okay, हम लोग सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस, Yes, अध्यात्म और 21वीं सदी, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. आज हम लोग 4th चैप्टर उसका कवर करेंगे. 4th चैप्टर. तो जिनके पास बुक है, दे कैन ओपन द बुक, सॉफ्ट कॉपी. नहीं तो मैं आप लोग के साथ इधर स्क्रीन में भी शेयर कर ले रहा हूँ, तो इजी हो जाएगा. ओके, ठीक है. कैन एवरीबडी रीड इट? इज इट विजिबल, क्लियरली विजिबल? yes, Prabhu. Yes, Prabhu. ओके, Yes, Prabhu. ठीक है. आयन, कैन यू रीड इट? देन विल स्टार्ट रीडिंग. अच्छा, हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं पहले. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मंगलाचरण की जाए. Yes, Prabhu, I can read it. यस, तो आज 4th चैप्टर इज कास्ट सिस्टम, कास्ट आउट. मतलब जो कास्ट सिस्टम है, जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम है, उसको हमको इस जीवन से निकाल के बाहर फेंकना है. तो क्यों कास्ट सिस्टम को बाहर फेंकना है, तो इसी के ऊपर में ये पूरा आज चैप्टर है. एक्चुअली में कास्ट सिस्टम, वैदिक सिस्टम क्या है और कास्ट सिस्टम क्या है, उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. और लोग कास्ट सिस्टम को वैदिक सिस्टम ही समझ के यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, ये इंडिया में ही एक्चुअली ज्यादा वो है, बाहर में उतना नहीं है, पर फिर भी जो भी हमको समझना बहुत जरूरी है. ओके, आई कैन स्टार्ट रीडिंग. Yes, Prabhu. Pushta Krishna. Next question. Srila Prabhupada. Will the fundamental values of the Vedic religion be in any way affected by the eradication of the caste system, towards which a concerted effort is now being made at all levels? Srila Prabhupada, the Vedic system of religion we have been describing, the Varnasrama system created by Krishna, is not to be confused with the present day caste system, determination of social division by birth, but as to eradication of all social divisions, it cannot be done. This is still more foolishness, because Krishna himself says, Chaturvarnyam Maya Shrashtam Guna Karma Vigasa. This system offers 4 social divisions according to quality and work is ordained by me. But the difficulty is that this so-called caste system has come in on account of the false notion that in order to be a Brahmana, one must be the son of Brahmana. That is the caste system. But Krishna does not say that. He says according to quality and work. He never says according to birth. So this is so-called caste system in India. Is a false notion of Chaturvarnyam, the system of 4 social divisions. The real system of Chaturvarnyam means Guna Karma Vigasa, determination of 4 social divisions according to quality and work. One must be qualified. And how does one become qualified? That is also described. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna describes the qualities of a Brahmana as follows: Samodhamastapa Socham Shantir Arjavam Evacha Jnanam Vijanam Astikyam. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. So people who want to become Brahmanas must be
educated to acquire these qualities. It is not enough simply to abolish the caste system, which is contaminated by the false conception of qualification by birthright. Certainly, this wrong caste system should be abolished. Also, educational centers should be opened for teaching people how to become genuine Brahmanas and Kshatriyas. Guna Karma Vigasa. According to their qualities and work, people naturally belong to different social groupings. So you cannot avoid it. But because you have created a false caste system, that should be abolished, and the system recommended by Krishna, that should be adopted. In any event, you cannot avoid the natural occurrence of various social divisions. Nature's caste system will remain. Take, for example, the Brahmanical quality of truthfulness. All over the world, wherever you go, you will find at least one person who is truthful. Does anyone say, oh, his father was truthful, therefore he is truthful? This is nonsense. Krishna never says anything like this. The father may be Hiranyakashipu, a big demon, but his son can still be Prahlada, a great devotee of the Lord. It is it is not that one will inevitably become exactly like one's father. Of course, it may be. There is every possibility, but still, it is not a fact that the son unavoidably become like the father. Our point is, wherever you go, you will find a first-class man who is truthful. Now, wherever you find a truthful man, you can satisfy him as Brahmana and train him to serve the social body in that capacity as a spiritual teacher and advisor. This that is wanted. Why assume here is the son of a truthful man, therefore he is truthful, a Brahmana? That is misconception. You have to find the truthful men all over the world and train them as Brahmanas. That we are doing. If you follow this principle, no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating, you are a Brahmana. Come on and receive further training. The fellow's father may be meat eater or a gambler or a drunkard, but if he himself is truthful and agreeable to the Brahminical life, then tell him, all right, come on, you are welcome. Then everything will be all right. You could not abolish the truthful class of men even if you wanted to. You will find truthful men everywhere. You simply have to train them. So Krishna says, Chaturvarnyam Maya Shashtam Guna Karma Vigasa. According to their qualities and work, you take some men and put them in the Brahmanical class, other in the Kshatriya class, still other in the Vaishya class, and the rest in the Sudra class. But you cannot abolish that system. That is false attempt. Pushta Krishna. You are saying the natural system is to classify a person and train him for a particular duty according to his particular inner qualities and his particular propensity to act. Srila Prabhupada, yes, that classification is wanted. That must be there. Pushta Krishna. And what will be the benefit of classifying and training people according to their own qualities and propensities? Srila Prabhupada, the benefit will be that the whole social body will function harmoniously. The social body must have a brain and arms and a belly and legs to be completed. If there is no brain, no head, then what is the use of these arms and legs and belly? It is all dead. So in human society, if there is not a class of learned, truthful, and honest men, uh, men with all the Brahminical qualifications, then society is ruined. That is why people are perplexed. Today, almost everyone is trained to be a Sudra, a laborer. Go to the factory, that's all. Go to the factory and get money. And when the man gets some money, he immediately purchases wine and woman. So if you try to make society classless, you will produce such men, useless men, disturbing to the social body. You cannot make society classless.
if you try to make it classless, naturally people will all be Sudras, fourth class men and worse. Then there will be a social chaos, Pushta Krishna. But can all people take an equal interest in religion despite their belonging to different social classifications? Srila Prabhupada, yes, this I have already explained, that any civilized human being, he has got some religion. Now, the basic principle of religion are the statements made by God. So here in the Vedic system is what God says. If you take to the system, then the social body will be perfect, not only for Hindus, but also for Christians, for Mohammedans, for everyone. And that is being practically realized in our Krishna consciousness movement. We have got devotees from all groups of human society, and they are taking to the Vedic system. It is practical. There is no difficulty. So Hindus, Muslims, Christians, everyone should take to this Krishna religion and become Krishnites, uh, Krishnans. Laughter. The Greek word Christo comes from the Sanskrit Krishna. In fact, another spelling of Krishna in Krishna. So actually, if we take the root meaning, Christian means Christian or Christian. So that is a controversial point, but everyone can take to Krishna. Then everything will be settled up. Okay, thank you, Ayan. So we finished this Yeah. chapter over here reading. We'll just go through a quick explanation of this, what Prabhupada has to say over here, what we learn from this, essentially, teachings, what we should take from here. Okay. तो क्वेश्चन क्या आता है पुष्ट कृष्ण का? कहते हैं कि अगर हम कास्ट सिस्टम जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, कास्ट सिस्टम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास, ये कास्ट सिस्टम है। तो अगर हम इस कास्ट सिस्टम को हटाते हैं, जिसके लिए अभी पूरा कास्ट सिस्टम हो रहा है, जैसे बहुत जगह देखते हैं कि कास्ट सिस्टम में अरे ब्राह्मण का पुत्री है या ब्राह्मण का पुत्र है, नीचे जात के लोगों के साथ कैसे शादी कर सकते हैं, कैसे उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ये बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं यहाँ पर, इसके ऊपर मूवीज भी बनते हैं, इसके ऊपर न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। ऑनर किलिंग जिसको बोलता है, भाई क्रॉस में, उसमें क्रॉस कास्ट में गए, अलग कास्ट में गए, तो उनको वहां पर लड़का लड़की आपस में दूसरे कास्ट के जाते हैं, तो ऑनर किलिंग अपने उसके लिए, कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मार डालते हैं। तो ये सब बहुत कुछ होता है इंडिया में। तो अभी यहाँ पर है कि या ये कास्ट सिस्टम को बैन करके, अगर किस कास्ट सिस्टम को बैन करते हैं, हटा देते हैं, कंप्लीटली हटा देते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है कि इक्वालिटी अमॉन्ग्स्ट एवरीबडी, तो अगर इस कास्ट सिस्टम को हटाते हैं तो क्या वैदिक सिस्टम का, कहते हैं ये कास्ट सिस्टम एक्चुअली वैदिक सिस्टम है, तो क्या ये जो फंडामेंटल वैल्यूज जो वैदिक सिस्टम का जो वैल्यूज है वो क्या खत्म हो जाएगा या अफेक्ट करेगा अगर हम इस कास्ट सिस्टम को हटाते हैं? ये है क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर डिफरेंस बताते हैं कास्ट सिस्टम का और वैदिक सिस्टम का। वैदिक सिस्टम इज क्रिएटेड बाय कृष्ण, वर्णाश्रम सिस्टम, तो जिसमें दो पार्ट है, एक वर्ण है, एक आश्रम है। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो कृष्ण बताते हैं, आई हैव क्रिएटेड दिस कास्ट सिस्टम और दिस वैदिक सिस्टम चतुर्वर्ण्यम, ये चार वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये मैंने बनाया। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इसकी सृष्टि की है, मैंने ये चार वर्ण बनाया है। किस बेसिस पे बनाया है? इसको एक बेस, एक ग्राउंड लेवल है उसका, जिसका एक क्वालिफिकेशन है, एक क्राइटेरिया है
कृष्ण कहते हैं क्राइटेरिया क्या है, गुण कर्म विभागस। विभागस में डिवीजन, जो भाग भाग मैंने किया है, ये भाग करने का क्राइटेरिया क्या है, गुण है और कर्म है। गुण मीन्स क्वालिटीज एंड कर्म मीन्स एक्शन। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये गुण और कर्म के हिसाब से बनाया है, बट लोगों ने इसको मिसयूज करके क्या किया है, उसको बर्थ में कन्वर्ट कर दिया है कि अगर ये ब्राह्मण है अपने गुणों से और कर्मों से, अगर ये ब्राह्मण है तो इसका पुत्र जन्म से ही ब्राह्मण होगा। नहीं, कृष्ण कहते हैं कि उसका क्वालिटी, उसका एक्टिविटी से वो ब्राह्मण कहलाएगा। खाली ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लेने से वो क्वालिफाइड, ऑटोमेटिकली ब्राह्मण के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। उसकी एक्टिविटीज, उसका सोच, अगर वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और मांसाहार करता है, नॉन वेजिटेरियन खाता है, मदिरा पान करता है, ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज नहीं है। क्योंकि ये वर्णाश्रम सिस्टम बनने के बाद कृष्ण बताते हैं कि एक एक वर्ण का, ब्राह्मण का क्या क्वालिटीज होना चाहिए जिससे वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे वो क्षत्रिय कहलाएगा, उसी तरह वैश्य का क्या क्वालिटी होना चाहिए जो उसको वैश्य की कैटेगरी में, मर्केंटाइल क्लास या बिजनेस क्लास की कैटेगरी में डालेगा, और शूद्र का क्या क्वालिटी रहेगा, शूद्र का क्या कार्य रहेगा, क्या एक्टिविटी रहेगा जिससे वो शूद्र के क्वालिटी, शूद्र की कैटेगरी में जाएगा। हो सकता है किसी का जन्म बिजनेस क्लास में हुआ, मर्केंटाइल क्लास में लिया हो, वैश्य क्लास में हुआ, पर उसके कार्य शूद्र जैसे हैं, वो बहुत ज्यादा मदिरा पान करता है, स्त्री संग करता है, ये शूद्र में इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर ऊपर के लेवल में इसका एक रेस्ट्रिक्शन होता है। तो क्वालिटीज के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से वो शूद्र कहलाता है। हालांकि उसका जन्म वैश्य या क्षत्रिय क्लास में भले या ब्राह्मण क्लास में क्यों ना हुआ हो, पर वो शूद्र कहलाएगा क्योंकि उसके कार्य वैसे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं, तो प्रभुपाद इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। ब्राह्मण का क्या क्वालिटीज है, यहाँ पर ब्राह्मण का क्वालिटीज दिया गया है, समो दमस तपस शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो समो मतलब समानता होना चाहिए उसमें, दमस मतलब कंट्रोल होना चाहिए, तप मतलब तपस्या, वो तपस्या करना चाहिए, ऑस्टेरिटी होना चाहिए उसमें, शौचम क्लेनलीनेस होना चाहिए उसमें, he should always remain clean, शांतिर आर्जवम, ऑनेस्ट होना चाहिए, और ज्ञान है, नॉलेज होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, रिलीजियसनेस होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज अगर होने से वो ब्राह्मण कहलाएगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि जैसे ट्रूथफुलनेस है, ट्रूथफुलनेस तो आ गया, सब जगह हमको ट्रूथफुलनेस चाहिए, सत्यता सब जगह चाहिए। तो सत्यता, अगर लोग कहते हैं कि इस कास्ट सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहना चाहिए, वैदिक सिस्टम बोल के कोई सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है एक एक नेचुरल वैदिक सिस्टम है, क्योंकि ये भगवान से बनाया गया है, तो प्रकृति के द्वारा एक वैदिक सिस्टम है। हर कोई व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कार्य कर रहा है, तो एक नेचुरल सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। आप इस नेचुरल सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में, आप पूरे वर्ल्ड में द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज में भी चाहिए, द रिचेस्ट नेशंस में चाहिए, द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकली और मिलिटरली और वेपनाइज्ड आप कंट्री में भी चाहिए। हर कंट्री में आपको ये एक नेचुरल डिवीजन, ये जो सिस्टम है डिवीजन का मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। वहाँ पर एडवाइजरी क्लास है, जो एडवाइस करते हैं। वहाँ बिजनेस क्लास है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वहाँ बिजनेसमैन है। उन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर भी तो हैं। आज कंस्ट्रक्शन साइट्स, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं,
तो क्या कंस्ट्रक्शन की जगह में लेबर काम नहीं करता है? शूद्र का काम है। क्या लोग जूते नहीं बनाते हैं? जूते क्या अपने आप बनते हैं? वहां क्या वो कॉबलर्स नहीं है? क्या हेल्पर्स नहीं है? क्या वहां पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं है? सब जगह है। तो ऑटोमेटिकली बाय नेचर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ये सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। Why only India? You take USA, you take Australia, you take New Zealand, you take Russia, you name any country in this world, this system is already there. तो आप किसी भी हालत में इस सिस्टम को नहीं हटा सकते। और हर कंट्री में, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कोई ना कोई सच्चा व्यक्ति आपको मिलेगा। तो ट्रूथफुलनेस इन सम केसेस इट इज इनहेरिटेड इन सेंस, अगर पिता के गुण पुत्र में आते हैं, संतान में आते हैं, पर बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है जहाँ पिता कुछ और थे, उसके पुत्र बहुत अच्छे निकले हैं, वेरी वेल सिस्टमैटिक पीपल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ऑनेस्ट, ये सब होता है। तो प्रभुपाद कहता तो ऐसे लोगों को हमको ढूंढना चाहिए। आप कास्ट सिस्टम के पीछे तरह माथा लगा रहे हैं, एक नेचुरल वर्णाश्रम सिस्टम को आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। और कास्ट सिस्टम को लेके इतना दुनिया भर में इतना सब कुछ हो रहा है, रेसिज्म को लेके इतना सब कुछ हो रहा है, रेसिस्ट ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंशिएशन चल रहा है, रिलीजियस लेवल पे इतना डिफरेंशिएशन चल रहा है, कास्ट सिस्टम को लेके इतना डिफरेंशिएशन चल रहा है। तो प्रभुपाद टेलिंग दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल टाइम क्या करना है, आपको ऑनेस्ट लोगों को, नॉलेजेबल एंड ऑनेस्ट पीपल को आपको खोजना है और उनका जो क्वालिटी है उनमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को बताना है। आप कैसे उनमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डालेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा। तो ब्राह्मणिकल क्वालिटी, अगर कोई ट्रूथफुल पर्सन है, कोई ऑनेस्ट पर्सन है, तो उसको अगर आप समझाएंगे, उसको अगर आप ये नॉलेज देंगे, वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें बेसिक जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज ट्रूथफुल। क्योंकि अभी कलयुग के जैसे हम लोग देखते हैं कि चार युग में 4 धर्म है, तो हर एक युग में एक एक धर्म कम हो जाता है, धर्म के एक एक पैर कम हो जाते हैं। तो अभी कलयुग में धर्म केवल एक ही पैर पे खड़ा हुआ है, वो है ट्रूथफुलनेस, सत्यता पे खड़ा हुआ है। तो अभी के युग में हमको सत्यवादी पर्सन को, ट्रूथफुल पर्सन को ढूंढ के उसको ब्राह्मणिकल क्वालिटीज में ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम उसको ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण इज कॉल्ड द हेड ऑफ अ पर्सन, मतलब बुद्ध, जैसे शरीर होता है, शरीर में दिमाग होता है, बुद्धि होती है, बुद्धि होता है, फिर सीना होता है, फिर हाथ पैर होते हैं, फिर बेली होता है। तो ऐसे कहते हैं कि ये बॉडी है, ये पूरा जो सिस्टम है, वर्णाश्रम सिस्टम है, दिस कैन बी कंपेयर्ड टू अ बॉडी, पर्सन्स बॉडी, होल सोशल बॉडी। इसमें क्या है, ब्रेन है, ब्रेन इज द ब्राह्मण, आर्म्स आर द क्षत्रियस, बेली इज द वैश्य क्लास, मर्केंटाइल क्लास और द बिजनेस करना है, लेग्स आर द शूद्र क्लास। तो अगर बुद्धि नहीं है तो क्या ये हाथ, पेट, पैर, कमर कुछ काम का है? नहीं है। जब बुद्धि ही नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा, द बॉडी विल बी ऑफ नो यूज। तो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर रहेगा तो पूरा बॉडी एक अच्छी तरह से फंक्शन करेगा। अगर ब्रेन रहता है दिमाग में, फंक्शनिंग ब्रेन रहता है, तो पूरा बॉडी ठीक से काम करेगा। अगर ब्रेन डेड है तो शरीर कुछ काम नहीं करने वाला है। वैसे ही ये अगर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज वाले पर्सन नहीं होते हैं इस सिस्टम में, इस दुनिया में ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के पर्सन नहीं होते हैं, तो पूरा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड जो है एक मिजरी में चले जाएगा, बेकार हो जाएगा, पूरा रुइन हो जाएगा। जो सोसाइटी है, सारे शूद्र बन जाएंगे, खाली जाएंगे, पैसा कमाएंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, यही बचा रहेगा। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो प्रभुपाद कहते हैं, ये मूवमेंट यही करता है, आपको भगवत गीता का ज्ञान देता है,
भगवान के साथ जोड़ता है, इस सिस्टम के बारे में बताता है, ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज बताता है आपको, और एक ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आप अपने जीवन में कैसे उसको उतारें इसके बारे में ये बताता है। तो ये कोई रिलीजियस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये भगवान के आदेश के ऊपर में, the instructions of Krishna, instructions of the Supreme Lord himself, this is based on that. So you cannot take it as sectarian. That is why we see all over the world, people from different religions are taking Krishna consciousness. They are adopting Krishna consciousness. Why? Because Krishna consciousness movement, ये जो ISKCON movement है, Krishna consciousness movement है, Krishna भावनामृत संघ जो है, ये आपको कृष्ण भक्ति में ट्रेन कर रहा है। आपका जो सनातन धर्म है, ओरिजिनल धर्म है, जो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का सेवक का स्वरूप है, उसके लिए हमको ट्रेन कर रहा है। आप किसी भी रिलीजन को आज के टाइम में, जो भी तथाकथित धर्म है या जो भी रिलीजन है, क्या आप उसको हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए, क्रिश्चियन बोलिए, सिख बोलिए, इस्लाम बोलिए, वॉट एवर रिलीजन यू नेम टुडे, दैट रिलीजन डजंट इट टीच द कंसेप्ट ऑफ गॉड। Hinduism teaches the concept of God, Islam teaches the conception of Allah, Christianity teaches the conception of God as a supreme father, Sikhism also teaches the teachings of gurus। उनके जो 10 गुरु हैं, वो 10 गुरु हमेशा क्या मेंशन करते हैं कि there is a supreme power and we should all surrender to that power, there is a supreme being। और गुरु ग्रंथ साहिब में हम देखेंगे कितनी जगह में राम का, हरि का, गोविंद का, गोपाल का, कृष्ण का नाम आता है। क्यों आता है? बिकॉज ईच एंड एवरी रिलीजन थ्रू देयर बुक्स, अपने अपने ग्रंथ हैं। यहाँ पर आप भागवत ले लीजिए, गीता ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, आप कुरान ले लीजिए इस्लामिक रिलीजन में, आप क्रिश्चियनिटी में बाइबल ले लीजिए, आप सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, तो सब जगह हम देखेंगे कि एवरीबडी इज टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ गॉड। इन व्हाट वे और द अदर दे गिव इट डिफरेंट नेम्स, बट दे आर टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ गॉड, which means they are imparting the instructions of God. How it is imparted, वहां पर contamination आ जाता है। People put their own बुद्धि over their own explanation over there, but हम लोगों का ये गुड लक है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद के गाइडेंस में, ISKCON जैसी संस्था में आके भगवत गीता के टीचिंग्स को एज इट इज यथा रूप में हम इनको, प्रभुपाद ने हमारे सामने इसको प्रेजेंट किया है विदाउट एनी कंटैमिनेशन। तो हम लोगों का विजन, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग इतना क्लियर हो जा रहा है कि हमको इसके बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। वी आर सेटिस्फाइड, वी आर गेटिंग द आंसर्स टू ईच एंड एवरी क्वेरी। हमारा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी मिसकंसेप्शन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग विच वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड, हमारा यहाँ पर आके पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जा रहा है। थैंक यू श्रील प्रभुपाद। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट प्रभुपाद से कि यही वैदिक सिस्टम, तो हम लोग को क्या करना है, इसी वैदिक सिस्टम को जो भगवान एक नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है, गुण कर्म विभाग स, भगवान ने कहा मैंने इसका विभाजन कैसे किया, गुणों से और कर्मों से विभाजन किया है, बर्थ से विभाजन नहीं किया है। तो हम लोगों को गुणों को, अपने गुणों को हम लोग को चाहिए कि हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, ब्राह्मण के गुणों को अपनाएं अपने जीवन में और उनके हिसाब से अपने डेली एक्टिविटीज करें, अपने कार्यों को उसी हिसाब से करें। ब्राह्मण का कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का ज्ञान देना, सबको जीवन में उतारना और दूसरों को शिक्षा देना। तो कर्म हमारे क्या होने चाहिए? ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अगर हमको अपनाना है तो कर्म भी हमारा ये होने चाहिए कि हमको ये ज्ञान लेना है, इस ज्ञान को सीखना है और जहां जहां हम इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन आवर एक्टिविटीज, आवर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये हम करते हैं तो वी कैन लीड अ वेरी
positive, peaceful, perfect life if we live according to this, according to the teachings of Bhagavad Gita, according to the teachings of Prabhupada. ठीक है, तो I can end it over here. If somebody has any questions, किसी कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो मैं ले सकता हूँ. ओके, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो. ओके, संदीप, फरीदा, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? संदीप, कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? क्लियर है कंसेप्ट जो आज हमने पढ़ा, जो समझा, जो एक्सप्लेनेशन हुआ? आयन? No, Prabhu, nothing from my end. ओके, अभिषेक? अद्रिजा? Yes, Prabhu, clear. और क्लियर? ओके. उत्कलिका? Hare Krishna, Prabhu. All clear, Prabhu. ओके, ओके, गुड. ईशा? Okay, Prabhu. क्लियर? ओके. जीत? जीत, तुम्हारा चेहराটা দেখি, তোমার হেয়ারস্টাইলটা দেখি, এই তো কি হাসি, হ্যাঁ, খুব ভালো. চলো, গুড. ক্লিয়ার আছে? ওকে, তোমার এক্সাম হয়ে গেছে না এখনো কিছু বাকি আছে? ঠিক আছে প্রভু, এখনো ফাইনালটা বাকি আছে মার্চ মাসে। ওটা মার্চে হবে, মানে এখন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ফাঁকা আছো, তাই নাকি? মানে এখন রেগুলার ক্লাস করবে, আপাতত 2 মাস ক্লাস করবে রেগুলার. চলো, ঠিক আছে, খুব ভালো. ওকে, প্রিয়দর্শিনী? Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Prabhu, all clear. All clear. Okay, good. Sneha? Hare Krishna, Prabhu, all clear. All clear. Okay. और सुमित? हरे कृष्ण प्रभु जी. All clear. Okay, good. उज्जैनी? उज्जैनी, बेरा. ओके, ठीक है. तो any questions anybody has or any comments somebody wants to comment? Sneha, your papa was telling कि जो कुछ बुक्स तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, गीता? बोले थे कि जो फ्रेंड्स को देना है. प्रभु, मेरा दोस्त है वो ईशादी है ना यहाँ पे, ये वो मेरे साथ कोचिंग में पढ़ते हैं, तो उसको चाहिए थी एक, और मेरे मैम्स को 2 चाहिए थी, तो और एक सर को, मैं 4 को बोला था पापा को. ओके, ठीक है, चलो सबको दे दिया गीता? हाँ, दे दिया, सिर्फ दीदी का बाकी है, वो बहुत दूर रहते हैं ना, वो आएंगे फिर दे देंगे उसको. अच्छा, कहाँ रहती है? हाँ प्रभु. कहाँ रहती है दीदी? भाटी खाना, आप पहचानोगे, ये शादी है ना उसको. भाटी हमारे यहाँ पर ही है, सिर्फ कोरोना हो रही है ना, इसलिए वो ट्यूशन नहीं आते, तो दे नहीं पाए. ओके, चलो ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो यहीं पर हम लोग एंड करें फिर सेशन को. थैंक यू सो मच ब्रो क्लास के लिए. वेरी गुड, थैंक यू फॉर सबको गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे आज का क्लास के लिए. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. Hare Bol. सूर्यवंशी प्रभु की जय. मैं शिला प्रभुपाद की जय. जय. ओके, मैं लेक्चर को, मैं आज के क्लास के रिकॉर्डिंग को डाल देता हूँ थोड़ी देर बाद, और लिंक शेयर कर दूंगा. आप लोग को रिवीजन करना हो तो आप लोग एक बार उसको वापस सुन लीजिएगा. फिर नेक्स्ट वीक हम उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, ओके प्रभु. हरे कृष्णा. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. समेत भक्तवृंद की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.